Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Bless your holy name. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Praise the name of the Lord. सबको जय मसीह की। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से, सुनिएगा। 2 Corinthians chapter number 7, and I will read verse 8, 9 and 10. This is Paul the Apostle write to the church at Corinth. देखिए प्रभु का दास क्या कहता है। For though I made you sorry with the letter, I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season. Verse number 9. Now I rejoice not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Verse number 10. For godly sorrow worketh repentance unto salvation, not to be repentant of it, but the sorrow of the world worketh death. प्रेरित पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिख के सेकंड एपिसल के अंदर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। और सुनिएगा ध्यान से, verse 8, 9 and 10. There are three kinds of sorrow that Paul is talking about. तीन तरह का sorrow को क्या कहेंगे, सुने ध्यान से। verse 8, 9 and 10 में सबसे पहले Paul's regret for the moment as he wondered whether he had made a mistake by being too severe in his letter. Church at Corinth was a very, very typical church. This church had come out of absolute pagan culture. Paul the Apostle, during his missionary journeys, landed up in this region. We find they were destined to go somewhere else, but because of the nasty weather, their ship landed in a different direction, and Paul touched the shores of Malta, where you have a famous story. You know, they put some bonfire and a snake crept over Paul's arm, and people started saying that he's a cursed man, Paul and Silas. Then he threw the snake into the fire, and people watched, and nothing happened to Paul the Apostle. So they began to bow down before them. They thought their gods, Zeus and Jupiter, have come. And you remember Paul tore their clothes off to let people know that they were only human beings. So Paul the Apostle planted a church in the region, and there was a town where the church at Corinth was established. That town was called Lesbos. Lesbos, Lesbos. Why it was called Lesbos? There was a temple of a particular Greek goddess, and there were some young women who would dwell in the temple all naked. And pilgrims will go and they will offer them sex and all kind of wild debauchery and orgies. So it was a place of absolute paganism and all kind of sexual perversion. Paul the Apostle preached the gospel of the kingdom, and some of those women repented and they became part of the church. You know, that is where this word Lesbos comes,
When women tend to build sexual relationship with other women, they are called lesbians. This is where the word comes from, lesbos. तो कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो लेस्बोस है जहाँ पे औरतें औरतों के संग संबंध रखती हैं, और प्रेरित पौलुस की सेवकाई के द्वारा उनमें से कुछ औरतें प्रभु की शरण में आई हैं। लेकिन अभी भी कलीसिया के अंदर बहुत से अंधकार के काम है। प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को लिखता है कि तुम्हारे अंदर सेक्सुअल इमोरालिटी ऐसी है जैसी अन्य जातियों में भी नहीं है। इस कलीसिया के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है, हीरो वर्शिप है। वो अलग अलग फेमस सेलिब्रिटी पास्टरों की पूजा करते हैं, जैसा कल्चर आज भी रेज किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। और इस कलीसिया के अंदर इमोरालिटी है, डिवीजन है। इस कलीसिया के अंदर कायदा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो प्रेरित पौलुस हालेलुया पत्री लिखता है, पहली पत्री जो पॉल समझता है कि बहुत हैवी थी, वेरी ही रियली हैमर्ड देम, ये सोचता है प्रेरित पौलुस। तो पौलुस का एक ह्यूमन रिग्रेट है यहाँ पे, पहला कि उसे लगा शायद उसने बहुत सख्त कलाम दिया है, लेकिन वो अच्छा था, वो सख्त नहीं था। और दूसरा जो यहाँ पे है, पहला सौरो पॉल का है, ह्यूमन सौरो। दूसरा सौरो जो यहाँ पे है वो आप पढ़ेंगे वर्स नंबर 10 में, गॉडली सौरो दैट वर्केथ रिपेंटेंस अनटू साल्वेशन। एक स्वर्ग से, there is a godly sorrow that will catapult a human being to bend his knees and repent truly from his heart and relinquish his evil ways and turn to God and admit from within that I am a wretched person and nothing can save me. Only your amazing grace can save me. And person surrenders. That's godly sorrow. This unrepentant sorrow or pain over lost goods, lost friends, lack of pleasure, partial reaping of what has been sowed, ये तीसरा sorrow है, sorrow of the world. वर्स नंबर 10 में लिखा, for godly sorrow worketh repentance not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. जगत का भी एक sorrow है, sorrow of the world that worketh death, वर्स नंबर 10. This is the unrepentant sorrow or pain over lost good, lost friend, lack of pleasure, partial reaping of what has been sown. तो एक और दुख है, sorrow है, वो है जगत का sorrow। जब आपको संसारिक चीजें नहीं मिलती हैं, जब आपका दिल प्रभु की ओर टूटा नहीं है, आपने कुछ खो दिया संसार में, आपके मित्र चले गए, या आपको वो आनंद नहीं मिला जो जगत में आप ढूंढ रहे थे, या जो आपने बोया उसका पूरा पूरा आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, इसका भी एक अफसोस होता है, वो है वर्ल्डली सॉरो। तो 3 सॉरो हैं यहाँ पे, हालेलुया। लेकिन गॉडली सॉरो, परमेश्वरीय क्षोम या परमेश्वर की ओर से टूटना मनुष्य को अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, हालेलुया। जगत का अफसोस मनुष्य को मृत्यु देता है। बाइबल में सौरों की एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। केन है पहली एग्जाम्पल, लेकिन केन तौबा नहीं करता है, केवल प्रभु से कहता है माई पनिशमेंट इज टू सीवियर। उत्पत्ति 4:13-14 वचन पढ़ लीजिएगा। उसने तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, बल्कि परमेश्वर से कहता है मेरी पनिशमेंट बहुत बड़ी है। उसने अपने गंदे काम के लिए, जो मर्डर अपने भाई का किया, उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, लेकिन सजा के विषय में प्रभु से कहता है मेरी सजा बहुत बड़ी है, जेनेसिस 4:13-14। फिर दूसरा सौरो हम देखते हैं हेगर का, हाजरा का, जो इब्राहिम की कनक्यूबाइन है। वो क्या प्रभु से वो क्या किस चीज के लिए सौरो अपना अफसोस व्यक्त करती है? दैट आई एम होमलेस,
मेरे पास घर नहीं रहने के लिए, मुझे निकाल दिया गया। आई एम रिजेक्टेड, आई एम बिट्रेड, आई एम बीन कास्ट आउट, आई एम होमलेस। उत्पत्ति 21 का 17 में उसका सारो है होमलेसनेस। केन का सारो है पनिशमेंट। इज़राइल इज़राइल का भी सॉरो है। जब सच्चा सॉरो, सच्चा अफसोस इज़राइल करता है, तब उसका छुटकारा आता है। इज़राइल का सॉरो है बॉन्डेज, कि वो 400 साल से ज़्यादा मिस्र की गुलामी में है। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 3:7-10, निर्गमन 3 अध्याय 7 से 10 वचन तक। इज़राइल का सॉरो। चौथा सॉरो की एग्जाम्पल हम देखते हैं जेकब फॉर जोसेफ। याकूब यूसुफ के लिए शोक मनाता है। इज़राइल का भी लिख लीजिए, इज़राइल का है बॉन्डेज, एक्सोडस 3:7-10, निर्गमन 3 का 7 से 10। और चौथा है इज़राइल का यूसुफ के लिए। इज़राइल यूसुफ के लिए शोक करता है। उत्पत्ति जेनेसिस 37, 34 और 35। उत्पत्ति 37 के 34 और 35 में। और फिर पांचवा हम सॉरो देखते हैं जेकब का बेंजामिन के लिए, जो उसका सबसे छोटा बेटा है, जिसे यूसुफ बांध लेता है मिस्र में। तो याकूब उसके लिए सॉरो करता है। उत्पत्ति जेनेसिस 43:14। उत्पत्ति 43, उत्पत्ति 43 का 14 वचन, बेंजामिन के लिए शोक करना। छठा जो शोक है वो है हन्ना का। हन्ना परमेश्वर के आगे रिग्रेट करती है, शोक मनाती है, और उसकी वजह है कि वो बैरन है, उसकी कोख बंद है, वो बांझ है। वो अपने बांझपन के लिए विलाप करती है, सॉरो करती है प्रभु के आगे। पहला सैमुएल 1 अध्याय 15 वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स नंबर 15। वो अपने बांझपन के लिए विलाप करती है, सॉरो करती है हन्ना। पहला सैमुएल 1 अध्याय 15 वचन। सातवां सॉरो हम देखते हैं, वो है शाऊल का। शाऊल सॉरो करता है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। शाऊल का सॉरो है दैट याह हैज रिजेक्टेड मी। वो अपने गंदे जीवन के ऊपर, अपने बुराई से भरे जीवन के ऊपर, अधर्म से भरे जीवन के ऊपर मनन करके पश्चाताप नहीं करता है। सौरव व्यक्त करता है कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। उसकी कारण क्या है, उसके ऊपर मनन नहीं करता है। पहला सैमुएल 15 का 24 और पहला सैमुएल 15 का 30। पहला सैमुएल 15 का 24 और 30 में सॉल इज सारोइंग बिकॉज गॉड रिजेक्टेड हिम। आठवां सारो है डेविड का, दाऊद का। डेविड सॉरो फॉर अबशलोम। दाऊद अबशलोम के लिए अफसोस करता है। दूसरा सैमुएल 18 का 33, सेकेंड सैमुएल 18:33 और सेकेंड सैमुएल 19:8। दाऊद का सॉरो अबशलोम के लिए। दूसरा सैमुएल 18 का 33, दूसरा सैमुएल 19 का 8। हालेलुया। और हम देखते हैं 9वें नंबर पे सॉरो है मैरी और मार्था का। मैरी और मार्था सॉरो करते हैं अपने भाई के लिए। यूहन्ना 11:19 से 40 में। यूहन्ना 11:19 अध्याय के, यूहन्ना 11 के 19 वचन से लेके 40 वचन तक मैरी एंड मार्था दोनों सॉरो करते हैं लाजर की अनटाइमली डेथ के ऊपर, और इस बात पे कि यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। अब 10वें नंबर पे यीशु मसीह सॉरो करते हैं, जीसस, सॉरो ऑफ जीसस। आइज़ाया 53:3, यशाया 53 का 3
और मत्ती 26 का 37 से 44। मत्ती रचित सुसमाचार 37 वर्स टू 44 वर्स। सॉरो ऑफ जीसस, यीशु मसीह का सॉरो। यशाया 53, यशाया 53 का 3 और मत्ती 26 का 37 से लेके 44 तक। और नंबर 11 पे सॉरो कौन करता है? जूडस इस्करियोट, यहूदा इस्करियोती भी सॉरो करता है। किस चीज पे सॉरो करता है यहूदा इस्करियोती? कि उसने निर्दोष को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला, कि उसने अपने स्वामी को बिट्रे किया, उसे त्याग दिया। मत्ती 27 अध्याय 3 से लेके 5। लेकिन जूडस का जो सॉरो है वो उसे मुक्ति तक नहीं लेके जाता, नजात तक नहीं लेके जाता, पापों की क्षमा तक नहीं लेके जाता, लेकिन ये वर्ल्डली सॉरो है जो उसे आत्मदाह की ओर ले जाता है, सुइसाइड की ओर ले जाता है। हालेलुया। और 12वां 12th सॉरो जो है वो है कुरिन्थियों की कलीसिया का। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 8 से 12 वचन पढ़ लीजिएगा जो मैंने अभी आपको दिया था। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 8 से लेके 12 वचन। ये 12 मिसालें हैं सॉरो की। इसमें से कुछ मिसालें ऐसे सॉरो की हैं जो सॉरो, जो अफसोस उन्हें यीशु के चरणों में ले गया, और कुछ ऐसे अफसोस की हैं जो केवल अफसोस था लेकिन उसका फल मुक्ति नहीं निकला। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं गॉडली सॉरो क्या करता है। आपको फर्क समझना है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, गॉडली सॉरो प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस एंड लीड्स टू साल्वेशन। लेकिन जगत का सॉरो मौत पैदा करता है। जब ये सॉरो, क्षमा की भावना, और जब आपके अंदर एक गहरा अफसोस और सच्ची क्षमा ढूंढने की भावना उत्पन्न होगी, तब पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के चरणों में ले जाएगा। तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह का लहू आपके लिए अवेलेबल करेगा ताकि यीशु मसीह के लहू में आप स्नान कर सकें। तब पवित्र आत्मा बाइबल की ओर, परमेश्वर के कलाम की ओर आपको लेके जाएगा ताकि आप वचन पढ़ें और आपकी आंखों पे गर्त जो जमी हुई है, गर्दा जमा है, आपके कानों के अंदर जो मैल फंसी वो निकल जाए और आपका हृदय जो सख्त हुआ है वो टूट जाए और आप परमेश्वर के चरणों में आ जाए। ये करेगा गॉडली सॉरो, परमेश्वर की ओर से भेजा गया सॉरो, सच्चा पश्चाताप। तो 7 बरकतें पैदा करता है गॉडली सॉरो। सुनिएगा ध्यान से। 7 बरकतें कौन सी पैदा करता है? सबसे पहली बात, अगर परमेश्वर की ओर से आत्मा काम करेगा और टूटापन आपके अंदर पैदा होगा, सच्ची क्षमा, सच्चे पश्चाताप की भावना आपके अंदर पैदा होगी, तो भाई और बहनों, सबसे पहले आप चाहेंगे कि आप परमेश्वर की आज्ञा माने। आप सजग हो जाएंगे आज्ञा मानने के लिए और आप रिपेंट करेंगे कि आपने प्रभु की आज्ञा क्यों नहीं मानी। आपका दिल प्रभु की ओर मुड़ेगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ अपने जीवन को बांधें। When godly sorrow is catapulting you towards God. You know, there are people, they are overtaken by the worldly sorrow. They regret, but they don't truly repent. There is a deep difference between merely regretting and deeply repenting and turning to God. First thing godly sorrow will promote in your heart, that you will seek to become obedient to the Lord and you will repent of all your disobedience. And the second thing godly sorrow will produce in you. दूसरी चीज godly sorrow क्या करेगा आपके अंदर? It will cleanse you from guilt. Guilt एक वैरी है आपका, समझ रहे आप? पाप गिल्ट और शेम पैदा करता है। पाप
आपके जीवन में आता है। जब आप पाप कर हटते हैं तो दो फल आपकी झोली में पाप डालता है। वन इज कॉल्ड गिल्ट एंड द अदर इज कॉल्ड शेम। एंड गिल्ट और शेम आपको एलियनेट करते हैं परमेश्वर से। They cut you off from the presence of God. You become alienated. You don't want to go closer to God. You don't want to open up the Bible and read the Word. You don't like people of God talking about the Word of God. You don't want to listen to a message from an anointed servant of God because sin has overtaken you. और गिल्ट के अंदर शैतान लोगों को बांध के रखना चाहता है, क्योंकि गिल्ट कॉन्डेमनेशन पैदा करेगी। Guilt will flood your heart with condemnation and you will be condemning yourself. और वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा, if our heart doesn't condemn us. Not Paul, John writes in his epistle, अगर हमारा दिल हमें दोषी न ठहराए तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अगर आपके अंदर गिल्ट है, अगर आपका ज़मीर आपको दोषी ठहराता है, तब आपकी प्रार्थनाएं कभी भी फल पैदा नहीं करेंगी। दूसरा ब्लेसिंग गॉडली सॉरो की है, गिल्ट निकालेगा आपके अंदर से। और तीसरी चीज क्या पैदा करेगा गॉडली सॉरो? ट्रू इंडिग्नेशन एंड हेट्रेड ऑफ सिन। आपके अंदर पाप के लिए क्रोध जगेगा, क्रोध आएगा पाप के लिए, और नफरत पैदा होगी पाप से, बदकारी से, गंदे कामों से एक हेट पैदा होगी आपके अंदर। ये तीसरी ब्लेसिंग है, इंडिग्नेशन एंड हेट्रेड फॉर सिन। चौथी ब्लेसिंग क्या पैदा करेगी ट्रू रिपेंटेंस? फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड, यहोवा का भय आपके दिल में समा जाएगा। सबसे ऑसम ब्लेसिंग है फियर ऑफ गॉड। आपको मालूम, बहुत से लोगों के अंदर फियर ऑफ गॉड नहीं है। उनके अंदर लव ऑफ गॉड होगा लेकिन फियर ऑफ गॉड नहीं है। फियर ऑफ गॉड विल कीप यू फ्रॉम सिन। हालेलुया। और पांचवी ब्लेसिंग गॉडली सॉरो क्या पैदा करेगा? पांचवी ब्लेसिंग पैदा करेगा योर डिजायर टू मेक थिंग्स राइट। अपने जीवन में सब कुछ आप सही करना चाहेंगे। यदि आपने किसी का दिल तोड़ा है, यदि आपने किसी से पैसा लिया वापस लौटाया नहीं, यदि आपने किसी का बुरा किया है, आप चाहेंगे आप सब सही करें, सब कुछ अमेंड करें ताकि आपका जीवन सही हो जाए, मनुष्यों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। आप अपनी रिलेशनशिप सही करेंगे, जो भी गलतियां आपने दूसरों के प्रति की हैं उन्हें मानेंगे और उन्हें सही करेंगे। ये पांचवी ब्लेसिंग होगी गॉडली सॉरो की। छठी ब्लेसिंग क्या है? अब आपके अंदर एक आग पैदा होगी, आप पवित्र जीवन जीना चाहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति आत्मा से भरेगा, परमेश्वर की हजूरी में खींचा जाएगा, तो उसके अंदर उन्माद पैदा होगा, ज़ील पैदा होगी पवित्र जीवन जीने के लिए। यदि आपके अंदर पवित्र जीवन जीने की आग नहीं है तो आप जीविते परमेश्वर से दूर हैं और पाप के बंधन में जीवन गुजार रहे हैं। सातवीं चीज क्या पैदा करेगा गॉडली सॉरो? हालेलुया। सातवीं चीज क्या पैदा करेगा गॉडली सॉरो? कि आपके अंदर परमेश्वर की संगति की भूख पैदा होगी, परमेश्वर के वचन की, पवित्र आत्मा की सामर्थ की और परमेश्वर के सच्चे धर्मी लोगों के साथ संगति की। जो परमेश्वर के सच्चे लोग होंगे, समझ रहे हैं आप, जहाँ पे सच्चा वचन होगा, जहाँ पे सच्ची फेलोशिप होगी, वहाँ पे आप संगति करना चाहेंगे। ये फल पैदा करेगा गॉडली सॉरो। हालेलुया। तो मैं आपको गॉडली सॉरो और वर्ल्डली सॉरो दोनों को इसलिए बताया कि आप पहचान करें कि कौन सा सॉरो आपके अंदर पैदा हो रहा है और उसके फल क्या हैं। हालेलुया। प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करें प्रभु से, सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरिए। भाई और बहनों,
पवित्र आत्मा का आपके अंदर काम, अद्भुत काम है पवित्र आत्मा का, हमारी जान में, हमारी रूह में, हमारे जिस्म में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में पवित्र आत्मा का अद्भुत काम है। हालेलुया। वो अद्भुत रीति से काम करता है। आइए पवित्र आत्मा की हजूरी में मगन हों, परमेश्वर की हजूरी से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भरें प्रतिदिन। हालेलुया। सुबह उठें, पवित्र आत्मा, प्रभु से कहें मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे अपने जीवित वचन से भर, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर स्वर्गीय पिता। सामर्थ का लिबास लें। हालेलुया। और सुबह आप परमेश्वर के हथियारों को पहने, मुक्ति के हेलमेट को पहने, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस को पहने, अपनी कमर कसें सच्चाई से, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहने, अपने हाथ में विश्वास की ढाल लें और राइट हैंड में लें रूह की तलवार, परमेश्वर का जीवित कलाम। हालेलुया। और सबसे शक्तिशाली वेपन सातवां कौन सा वहां पे लिखा है 6 अध्याय इफिसियों की पत्री में? हर प्रकार की प्रार्थना। प्रार्थना कई प्रकार की है। प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार है। हर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए। और भाइयों और बहनों, सुबह उठ के मसीह का मन पहन लें। मैं अपने सर के ऊपर रखता हूं ऐसे हेलमेट ऑफ साल्वेशन, और मैं अपने सर के अंदर एक्टिवेट करता हूं माइंड ऑफ क्राइस्ट। वी हैव बीन गिवन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह का मन दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह की तरह सोच सकें। हमारी सोचें यीशु मसीह जैसी हों, हमारी इमेजिनेशन यीशु मसीह जैसे हों, हमारे ख्याल यीशु मसीह जैसे हों, हमारी डिज़ायर यीशु मसीह जैसी हों, हमारी इंक्लिनेशन, हमारे इरादे यीशु मसीह जैसे हों। हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट को एक्टिवेट करना है। अपने पुराने माइंड से, जो आदम के पाप के कारण अनुवांशिकता में पाप में गिरा माइंड हमें मिला है, उस माइंड से सोचना नहीं है, उस माइंड के द्वारा जीवन नहीं जीना है। एक नया माइंड, मसीह का मन हमें दिया गया है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, उसे एक्टिवेट करना है। हालेलुया। खुदावंद, आज की सुबह तेरे लोगों में तेरा माइंड एक्टिवेट हो, आत्मा के हथियार ये लोग पहने खुदावंद, पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरे। मैं एक एक के ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूँ। जितने ऑनलाइन हैं, वचन सुन रहे हैं, जितने इसके बाद वचन सुनेंगे, उन पे भी तेरा लहू छिड़कता हूँ। प्रभु, एक एक जन को पवित्र आत्मा की कुव्वत से भर। प्रभु यीशु मसीह, तेरे सच्चे कलाम की गहराइयाँ हमारे जीवन में खोल, ताकि तेरे सच्चे कलाम की पहचान में हम बढ़ते जाएं और तेरे सच्चे और जीवित वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। तेरा लहू तेरे एक एक बेटे बेटी के ऊपर मैं छिड़क देता हूँ। एक एक को अनॉइंट करें यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। दिन में फिर हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होंगे। मैं आपको मैसेज करूंगा, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा प्रार्थना के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।